I welcome you all to the 7th BRICS Youth Summit. I, Rishika Tomar, Lahari Challa, and Yash Mittal are going to present the prospects of education and capacity building for youth among BRICS countries. These are the topics that we are going to discuss in our upcoming slides. Talking about the existing academic credit system across BRICS countries, we will find that there is diversity at higher education level. Multiple approaches are being followed towards examination, evaluation, and grading system, which causes difficulty for academicians and employers to understand the performance of students. This also leads to complicated paperwork at different universities. Therefore, there is a need to devise a common credit system for BRICS countries that enable us to bring equity, efficiency, and excellence among BRICS countries collectively. Some of the benefits of the common credit system include measurement of performance of the students within BRICS countries. Common credit system will assist in transferring of credits easily from one university to the another. This will also help students in studying bachelor's in one and master's in another country. CCS can also help in tracking scores for joint degree programs, and local students will get international exposure. We are recommending to introduce uniform grading system across BRICS countries to be called as BRICS Common Credit System, that is BCCS. Why grading system? Because it is better than any other conventional methods which is easily accepted all around the world. Grading system enables easy conversion of other type of scores to grades and makes student performance transparent and comparable. To structure BCCS, we want to recommend the grading system which is followed by the University Grants Commission of India. In this system, letter grades and grade points can be used as you see on the screen, and the performance of the students can be judged accordingly. If we talk about credits distribution, the amount of workload in a defined period of time can be allotted as follows: 30 BCCS credits for one semester and accordingly 60 credits for one full academic year. 3-year bachelor's program for a total number of 180 credits and master's program for 90 or 120 credits. Now, we want to recommend one cross-country program to be called BRAVE program, which is BRICS Reach for Advancement of Versatile Education, a comprehensive inter-university program for BRICS countries with the aim of providing opportunity to students of these countries. This program will smoothen the process of learning with socializing and provide scope of studying abroad. The recommended features of the BRAVE program are: there will be no extra tuition fees. The students who are applying to this program need to complete at least 1 year of education in their domestic country. And when the students visit another BRICS country. हेलो, मेरा नाम ऋषिका तोमर है और मैं IIT रुड़की में PhD की स्टूडेंट हूँ। आज मैंने 7th ब्रिक्स यूथ समिट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जो कि कराया जा रहा था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका प्रोसीजर कुछ इस प्रकार था। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर एक कॉलेज से 4 बच्चों के नाम मंगाए थे और हमारे IIT रुड़की से भी बच्चों को अप्लाई करने के लिए कहा गया था, जिसमें मैंने अप्लाई किया। उसके बाद हमारे IIT रुड़की के पास अराउंड 20 स्टूडेंट्स की लिस्ट आई थी, जिसमें से उन्होंने 12 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया था। उसके बाद जब 12 बच्चों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया, उसके बाद उनका एक रिटन एग्जाम हुआ था, जिसमें लिखना था कि कैसे आप यूथ को सपोर्ट कर सकते हैं और कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिसमें आपने यूथ रिलेटेड इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है एंड हाउ आप कैसे आगे जाके यूथ को सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने वो एग्ज़ाम पास करने के बाद उन्होंने 12 बच्चों को कॉल किया था इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू हुआ, उसमें उन्होंने पूछा कि अगर आपसे कोई पूछे इंडिया के बारे में तो आप क्या बताएंगे, इंडिया कैसे अलग है, और अगर कोई बच्चा आपके पास पढ़ने आता है एक्सचेंज प्रोग्राम में किसी और देश से, तो आप उसको क्या बताना चाहेंगे और इंडिया के बारे में क्या दिखाना चाहेंगे और इंडिया की क्या खास बात है। इसके बाद उन्होंने
12 बच्चों में से 4 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया और 4 बच्चों के नाम मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजे। इसी तरह से अलग अलग इंस्टीट्यूट है तो हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को आसानी से जज कर सकते हैं। अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो उसमें आसानी से पता चल जाएगा कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, वेरी गुड है, पुअर है या फेल है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर ये सिस्टम सारे कंट्रीज फॉलो करें तो एक समानता आ जाएगी, जिससे कि आसानी होगी एक देश से दूसरे देश जाने में या पढ़ने में, या वो यहाँ पर पढ़ रहा है या वहाँ पर पढ़ रहा है, उसमें उसके स्कोर्स को आसानी से जज किया जा सकेगा। फिर हमने उनको एक सजेशन ये दिया ब्रिक्स कंट्रीज के लिए कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए जिसमें एक्सचेंज आसानी से किया जा सके। हमने उनको सजेशन दिया कि ब्रेव प्रोग्राम का उनको एस्टैब्लिशमेंट करनी चाहिए। ब्रेव प्रोग्राम का मीनिंग है ब्रिक्स रीच फॉर एडवांसमेंट ऑफ वर्सेटाइल एजुकेशन। इसमें बच्चों को मौका मिल सके कि वो एक प्रोग्राम अपना इंडिया में कर सके, एक सेमेस्टर अपना इंडिया में कर सके और एक सेमेस्टर अपना ब्रिक्स के किसी भी देश में कर सके, या एक सेमेस्टर इंडिया में एक ब्रिक्स कंट्रीज के ब्राजील में कह लो, या रशिया में, या चाइना में, या साउथ अफ्रीका में। वो कहीं से भी पढ़ाई करे पर उसको उसका जो जजमेंट है, जो स्कोर्स है, वो सेम होने चाहिए ऑल अराउंड द कंट्रीज। सो ये हमारा सजेशन था ब्रिक्स कंट्रीज के लिए। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। नमस्ते। 4 बच्चों के नाम एक इंस्टीट्यूट से भेजे गए। इसमें अराउंड 200 से 250 इंस्टीट्यूट ने अपने नाम मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजे, जिसमें से उन्होंने कुल 15 बच्चे सेलेक्ट किए। 15 बच्चों में से मेरा भी एक नाम था और IIT रुड़की में से जो 4 नाम भेजे गए थे उनमें से सिर्फ मेरा ही सिलेक्शन हुआ था। सो इसके बाद प्रोसीजर हुआ कि हमें रिप्रेजेंट करना था इंडिया को। इस ब्रिक्स यूथ समिट में टोटल 5 थीम्स थे। 5 थीम्स में से जो हमें दिया गया थीम वो था एजुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर यूथ। हमने बताया कि कैसे एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है अमंग ब्रिक्स कंट्रीज। ब्रिक्स कंट्रीज को एक ऐसा ब्रिक्स कंट्रीज को अगर रेफर करें तो ब्रिक्स कंट्रीज में इंक्लूड होते हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। हमने बताया कि इनका कोऑपरेशन और कैसे मजबूत किया जा सकता है अमंग स्टूडेंट्स लेवल। हमने कहा कि जो हमारी टीम थी उसने वर्क किया कि एजुकेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है कलेक्टिवली ब्रिक्स कंट्रीज के फॉर्मेट में। हमने उनको सजेशन दिया कि हमें एक ऐसा कॉमन क्रेडिट सिस्टम बनाना चाहिए जिससे इवैल्यूएशन हमारी कंट्री में और उनकी कंट्री में समान हो सके, जिससे कि बच्चे को पढ़ने में आसानी मिल सके, ताकि अगर वो हमारे